Assalamu alaikum, grade 7. How are you all? I expect that you all are fine and safe. Okay, grade 7, this is your English lesson, and today we are going to start our unit number 8. So, before anything else, you have to take out your English books along with some stationery like pencil for writing the word meanings, and you have to open your English books at page number 42. And I hope that you have completed your notebooks so that it is easy for you and for us. So, yes, coming to page number 42, this is unit number 8, Treasure Island, book English. So first, what I'll do, beta, is I'll read it out first, and when I start reading, you also start reading, and after reading the full first paragraph, then I'll explain each and everything. So let's get started with our reading. Place your fingers on the Treasure Island topic and start reading with me. Treasure Island. Treasure Island by Robert Louis Stevenson is a classical tale. A pirate named Billy Bones comes to stay at Admiral Benbow, an inn owned by Jim's mother. When he dies, Jim and his mother find a treasure map. Jim takes it to Dr. Livesey and Squire Tremaine, who agree to outfit a ship and search for the treasure along John Silver, who signs on as a cook but is in fact a notorious pirate, enlist a crew of pirates. As soon as the ship reaches the island, the pirates mutiny. Jim, separated from the rest of the loyal crew, finds an Englishman marooned on the island. Ben Gunn, who agrees to help in return for a share of the treasure and safe passage to England. After a series of battles, several of the pirates and the loyal crew members are killed. Jim beaches the ship they come in to prevent the pirates from escaping in it. Long John Silver recaptures Jim and takes him along as the pirates search for the treasure. So today I read it because there were some names and there were some pronunciations which do not appear to be easy. So that's why I first read it out for you. Now coming to the explanation. Okay, so Treasure Island. It is written by Robert Louis Stevenson. Okay, this name is written in the very first line. Treasure Island is a story. It is a tale. Tale means story. It is a story. Classical means of old ages or traditional. So this Treasure Island is a story by Robert Louis Stevenson. This is the name of the writer. Okay. So in this story, what happens? A pirate. Do you know pirate? Pirates are basically robbers of the ship. Okay, the people who rob the ships. जो कश्तियों में चोरी करते हैं ना, उनको pirates कहते हैं. Right? I hope you have seen the Pirates of the Caribbean. बस वही लोग जो कि कश्तियों और जहाज़ों को जो लूटते हैं उनको पायरेट्स कहते हैं. तो अ पायरेट नेम्ड बिली बोन्स, एक पायरेट होता है जिसका नाम होता है बिली बोन्स, कम्स टू स्टे, वो रहने आता है एट द एडमिरल बेम्बो. अब एडमिरल बेम्बो जो है वो एक रहने की जगह का नाम है. ठीक है, तो वो जो बिली बोन्स होता है वो रहने के लिए आता है एडमिरल बेम्बो, एन इन. अब ये एडमिरल बेम्बो क्या है? ये एक इन है. इन बेसिकली रहने की जगह होती है, जैसे होटल्स होते हैं. ठीक है, तो इन भी होटल ही होता है, और उस होटल का नाम क्या होता है? एडमिरल बेम्बो, ओन्ड बाय जिम्स मदर. तो वो होटल जो होता है एडमिरल बेम्बो, ये होता है जिम की ममा का. ठीक है, जिम की मदर का वो एक होटल होता है, और वहाँ पे रहने आता है बिली बोन्स. When he dies, जब बिली बोन मर जाता है, उधर उसी होटल में वो मर जाता है,
जिम एंड हिज मदर फाइंड अ ट्रेजर मैप। तो जिम और उसकी जो अम्मी है उनको एक ट्रेजर मैप मिलता है, एक ख़जाने का नक्शा मिलता है। ओके तो देखो जब कोई मर जाता है तो फिर उसकी चीज़ें तो चेक कर लेते हैं ना। तो वो बिली बोन्स जो था वो उन्हीं की होटल में मर गया और उसकी अम्मी को और जिम की अम्मी का होटल था वो, तो जिम को और उसकी अम्मी को एक नक्शा जो था वो मिला जो कि एक ख़जाने का था। जिम टेक्स इट टू डॉक्टर लेवजी। लेवल यहाँ पे CY है, SCY, ये जो बेसिकली ये नाम है लाइवजी, ठीक है। लाइवजी और इस नाम में जो है ये C नहीं है, ये E है, ठीक है। LIVESEY, राइट। तो एक्चुअल नाम इस तरह का होता है, मे बी दैट इज़ अ बिट चेंज, लेकिन यहाँ पे नीचे एक दूसरा वर्ड है, वहाँ पे भी E की जगह C लिखा है, वो मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो जिम जो है वो मैप को उठा के लेके जाता है डॉक्टर लेवजी के पास, ठीक है। एंड स्क्वायर ट्रेवाने ये दो बंदे होते हैं, ठीक है, जो कि शायद नक्शों के एक्सपर्ट होते हैं। तो ये उनके पास वो नक्शा लेके जाता है क्योंकि आम बंदों को तो नक्शे समझ में नहीं आते। हु अग्रीज टू आउटफिट अ शिप, ये दोनों जो होते हैं ये अग्री करते हैं, राज़ी हो जाते हैं, टू आउटफिट अ शिप, यानी एक शिप को तैयार करने में। आउटफिट मतलब जब आप साजो सामान तैयार करते हैं, तो ये दोनों तैयार हो गए एक जहाज़ का साजो सामान बनाने के लिए, राइट। एंड सर्च फॉर द ट्रेजर, और वो इसलिए वो शिप के लिए भी तैयार हो गए कि चलो हम शिप भी बना देते हैं, वो इस चीज़ के लिए भी तैयार हो गए कि ख़जाने का वो पता लगा लेंगे, ख़जाने को सर्च कर लेंगे, राइट। लॉन्ग जॉन सिल्वर, अभी यहाँ पे एक और कैरेक्टर आ जाता है, दैट नेम इज़ लॉन्ग जॉन सिल्वर, ठीक है। हु साइंस ऑन एज अ कुक, तो लॉन्ग जॉन सिल्वर जो है उसको एज अ शेफ़ रख लेते हैं, वो एज अ कुक रख लेते हैं जो कि जहाज़ पे उनके लिए खाना बनाएगा, ठीक है। साइंस ऑन मीन्स टू टेक अ जॉब, तो लॉन्ग जॉन सिल्वर टुक द जॉब ऑफ अ कुक बट इज़ इन फैक्ट अ नोटोरियस पायरेट। लेकिन जो लॉन्ग जॉन सिल्वर होता है ये एक्चुअल में इनफैक्ट यानी असल में ये बहुत ही बदनाम पायरेट होता है, ठीक है। वो अपने आप को कुक जाहिर करता है बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी नोटोरियस, मीन्स जो कि एक बंदा जो कि मशहूर हो लेकिन उसका नाम अच्छा ना हो, ठीक है, बदनामी जिसकी हुई होती है, तो वो एक बदनाम पायरेट होता है, बदनाम चोर होता है, ठीक है। इनलिस्ट अ क्रू ऑफ पायरेट्स, पायरेट्स क्रू मीन्स टीम, तो ये जो लॉन्ग जॉन सिल्वर होता है ये इनलिस्ट हो जाता है, यानी जो पायरेट्स की वो जो टीम बन जाती है, वो जो जा रहे होते हैं जहाज़ पे, तो उस टीम में लॉन्ग जॉन सिल्वर का नाम शामिल हो जाता है एज अ कुक, बट एक्चुअली ही इज़ अ वेरी बैड पर्सन, ओके। एज सून एज द शिप रीचेज द आइलैंड, अभी वो जहाज़ कहाँ पे होता है, शिप जो होती है, नो सॉरी, जो ख़जाना होता है, जो ट्रेजर होता है, वो एक आइलैंड में होता है, ठीक है। तो वो एक आइलैंड में होता है, तो जैसे ही जल्दी ही, एज सून एज मतलब जैसे ही या जल्दी ही, वो जो शिप होती है, जहाज़ होता है, वो रीच कर जाती है आइलैंड पर, यानी वो उस जज़ीरे पर पहुंच जाते हैं जिस जज़ीरे में जिस जज़ीरे में ख़जाना होता है। द पायरेट्स म्यूटिनी, अब पायरेट्स की जो टीम होती है, वो जो क्रू उन्होंने बनाया था बहुत सारे लोगों का, उसमें से एहतजाज निकल के आ जाता है। म्यूटिनी होता है जब आप हुकूमत का तख्ता पलटने पर लग जाओ, ठीक है, एहतजाज करो, या आप धोखा कर दो अपने अथॉरिटीज़ के साथ, ठीक है। वो अब धोखा क्यों करते हैं, वो धोखा इसीलिए करते हैं बिकॉज दे वांट ऑल द ट्रेजर, ठीक है। तो अब देखो जो मालिक होते हैं, ठीक है, तो वो तो अपने वर्कर्स के बगैर कुछ भी नहीं होते ना, राइट। तो इसी तरह उन्होंने कहा कि वैसे भी ये लोग हमारे बगैर कुछ कर नहीं पाएंगे, तो चलो एक एहतजाज करते हैं या धोखा दे देते हैं इन लोगों को, और फिर ये लोग कुछ कर नहीं पाएंगे तो हम सारा ख़जाना ले लेंगे। वो जो टीम होती है उसमें से कुछ ही लोग होते हैं जो कि म्यूटिनी करते हैं, जो कि एहतजाज करते हैं, जो कि दगाबाजी कर लेते हैं अपने मालिकों के साथ,
ठीक है। तो जैसे ही वो जो जहाज़ होता है वो आइलैंड पर पहुंचता है तो वहाँ पे कुछ लोग जो होते हैं, पायरेट्स, वो जो टीम मेंबर्स होते हैं, वो एहतजाज कर लेते हैं। जिम सेपरेटेड फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉयल क्रू। अब जिम जो होता है, वो जो इनका मालिक होता है, वो अलग हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। सेपरेटेड हालात ऐसे हो जाते हैं कि उसको अलग होना पड़ता है फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द लॉयल क्रू। रेस्ट ऑफ द बाकी जो लॉयल टीम मेंबर्स थे, बाकी जो लॉयल क्रू थी, ठीक है, वो उनसे पता नहीं कैसे वो अलग हो जाता है। ठीक है, कुछ पायरेट्स जो थे वो अच्छे थे, लॉयल थे, कुछ पायरेट्स जो थे वो दगाबाज निकले। ठीक है, तो वो जो जिम होता है वो अलग हो जाता है जो लॉयल क्रू मेंबर्स थे। फाइंड्स एन इंग्लिश मैन। तो जिम जब अलग हो जाता है, अकेला हो जाता है, वो अकेला रह जाता है, तो वो उसी आइलैंड पे एक इंग्लिशमैन यानी पीपल ऑफ इंग्लैंड, तो वो इंग्लैंड के एक बंदे से मिलता है, मरून्ड ऑन द आइलैंड। मरून्ड अब किसे कहते हैं? मरून कहते हैं बेटा जब एक बंदा जो है वो कहीं पे फंस जाता है और एक अकेला होता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप किसी बिल्डिंग में फंस जाते हैं, आपके पास वापस जाने का रास्ता नहीं होता, तो दिस थिंग इज़ कॉल्ड बीइंग मरून्ड। तो आप मरून्ड हो जाते हो, आप मरून हो जाते हो, एक किस्म से आप कैद हो जाते हो उधर। ठीक है, यानी जेल तो होती नहीं है लेकिन आप कैद हो जाते हो, राइट। तो यहाँ पे एक बंदा होता है जो कि उसी आइलैंड में फंसा हुआ होता है, उसके पास कोई रास्ता नहीं होता वापस जाने का, वो एक अकेला होता है। तो वो इंग्लिशमैन होता है, वो इंग्लैंड का होता है। ठीक है, तो जिम उसके साथ मिल लेता है, बेनगन, और उस बंदे का नाम क्या होता है? वो जो मरून्ड होता है वो बंदा, उसका नाम होता है बेनगन। तो जिम की मुलाकात बेनगन से हो जाती है। हु अग्रीज टू हेल्प। अभी जो बेनगन है वो जिम जो है उसे सारी कहानी सुना देता है कि मेरे साथ क्या क्या हुआ है, मेरे पास नक्शा है, मुझे ख़जाना चाहिए। तो बेनगन जो है वो अग्री कर जाता है, वो राज़ी हो जाता है मदद करने के लिए, टू हेल्प, राइट। तो वो मदद करने के लिए राज़ी हो जाता है इन रिटर्न, लेकिन उसके बदले में फॉर अ शेयर ऑफ ट्रेजर, लेकिन उसके बदले में उसे शेयर ऑफ ट्रेजर चाहिए, यानी जो ख़जाने का थोड़ा सा हिस्सा चाहिए। ठीक है, वो कहता है कि हाँ मैं तुम्हारी मदद करूँगा, बट यू हैव टू शेयर योर ट्रेजर विद मी। ठीक है, एंड सेफ पैसेज टू इंग्लैंड, और दूसरी शर्त उसकी ये होती है कि आप मुझे सेफली इंग्लैंड पहुंचाओगे। ठीक है, पैसेज मीन्स टू क्रॉस और टू गो। ठीक है, तो वो कहता है कि मुझे तुम एक तो अपने ख़जाने में से मुझे शेयर दोगे, हिस्सा दोगे, सेकेंडली यू हैव टू टेक मी टू द इंग्लैंड सेफली। ठीक है, क्योंकि वो वहाँ पे फंसा होता है, उसके लिए अच्छा चांस होता है, जिनके पास जहाज़ भी होता है। तो अब क्या होता है कि वो जो एक जो वो बैड क्रू मेंबर्स होते हैं और एक जिम लोग होते हैं, ठीक है, जो गुड क्रू मेंबर्स होते हैं, ठीक है, इनकी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है आफ्टर अ सीरीज ऑफ बैटल। सीरीज मीन वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, बैटल्स मीन जंग। ठीक है, जो बैटल्स इज जंग राइट, वॉर। तो इन एक के बाद एक वॉर होती रही इनके बीच में, अच्छे और बुरे पायरेट्स के बीच में। ठीक है, बुरे तो नहीं लेकिन वो पायरेट्स जो जो वो कर रहे थे, एहतजाज कर रहे थे, तो उनके बीच में बहुत सारी जंगें हुई। several of the pirates and loyal crew members are killed। अभी several means many, कुछ पायरेट्स और कुछ लॉयल क्रू मेंबर्स जो हैं वो मर जाते हैं, वो दे हैव बीन किल्ड, उनको मार दिया जाता है, राइट, दे हैव बीन किल्ड, उनको मार दिया जाता है। जिम बीचेस द शिप। अब जिम जो है वो शिप को आइलैंड पे कहीं पे वो रोक देता है। ठीक है, आइलैंड की किसी भी साइड पे। बीचेस मतलब किसी चीज़ को लाके साहिल पे खड़ा करना। ठीक है, जो साहिल होता है उसको बीच कहते हैं, राइट। तो जिम जो होता है वो शिप को साहिल पे खड़ा कर देता है। They came in to prevent the pirates from escaping in it। अब ये सेंटेंस एक्चुअली मुझे भी खुद क्लियर नहीं है, मे बी इसमें पंक्चुएशन मार्क्स मिसिंग है।
लेकिन वो शिप में गए, द केम इन, वो शिप के अंदर गए टू प्रिवेंट, ताकि वो रोक सके द पायरेट्स, बाकी पायरेट्स को, फ्रॉम एस्केपिंग इन इट, ताकि वो यहाँ से बाहर ना जा सके। अब उसने शिप को जो है वो साहिल पे पार्क कर दिया है, ठीक है। शिप के अंदर जिम जो है वो जाता है और अंदर कुछ पायरेट्स होते हैं, मे बी वो धोखेबाज वाले पायरेट्स हों, ठीक है। तो वो जाता है और उनको भागने की जो कोशिश होती है, एस्केपिंग मतलब भाग जाना, रनिंग अवे, तो वो कोशिश करता है कि जो पायरेट्स भाग रहे हैं वो ना भागें और वो उनको बंद कर देता है, मे बी समथिंग लाइक दिस, ठीक है। लॉन्ग जॉन सिल्वर रिकैप्चर्स जिम, अभी उसी शिप के आसपास जो है लॉन्ग जॉन सिल्वर, वो जो नोटोरियस कुक था, वो जो नोटोरियस पायलट था, वो जो बदनाम पायलट था, ठीक है, वो जो है वो रिकैप्चर कर लेता है जिम को वो दोबारा से पकड़ लेता है। रिकैप्चर मीन दोबारा से पकड़ना, टू कैच अगेन, तो वो जिम को दोबारा से पकड़ लेता है। एंड टेक्स हिम अलोंग, और वो उसे अपने साथ ले जाता है। अलोंग मीन्स अपने साथ। एज द पायरेट्स सर्च फॉर द ट्रेजर, और ये मिल के जितने भी सारे लॉन्ग जॉन सिल्वर के साथ जो पायरेट्स होते हैं, जिम के साथ थोड़े बहुत लोग मिल जाते हैं शिप के अंदर, और इस तरह बेनगन, शायद ये सारे लोग इकट्ठे होके क्या करते हैं, ये सर्च करते हैं ट्रेजर के लिए, ख़जाने के लिए वो ढूंढते हैं। अच्छा, यहाँ पे सर्च की जगह इन द फर्स्ट पैराग्राफ, इन द सेकेंड लास्ट लाइन, यहाँ पे स्कार्च लिखा हुआ है, ठीक है। इट्स नॉट स्कार्च, इट्स सर्च, ठीक है। और यहाँ पे एक कॉमा भी मिसिंग है, ओके। सो देर आर टाइनी ग्रामेटिकल मिस्टेक्स इन दिस पैराग्राफ, but it's okay. I know you are smart boys and girls and you can understand it, right? So what is happening in the story, that is ke everyone is searching for the treasure, some people are killing other for the treasure, कोई किसी का फ़ायदा उठा रहा है, you know, everybody is looking for the khazana, right? So that's it, grade 7. Coming to the word meanings, टेल स्टोरी, कहानी, क्लासिकल ट्रेडिशनल, जो पुराना ट्रेडिशनल किस्म का जो चीज़ होती है उसको हम क्लासिकल कहते हैं, ठीक है। पायरेट, अ पर्सन हु रॉब्स द शिप, पायरेट वो बंदा होता है जो कि जहाज़, जो कश्तियाँ वगैरह होती हैं उन पे जब चोरियाँ करते हैं तो उनको पायरेट कहते हैं। इन, अ प्लेस ऑफ स्टे फॉर ट्रैवलर्स, मुसाफिरों के लिए रहने की जगह को इन कहते हैं, जैसे कि होटल्स होते हैं। आउटफिट, टू मेक समथिंग रेडी फॉर वॉयज, आउटफिट बेटा ये सफ़र के लिए, एक तो आउटफिट ड्रेसेस को भी कहते हैं, राइट, बट एक आउटफिट कहते हैं जब आप सफ़र के लिए चीज़ों को तैयार करें, ओके। तो उन्होंने क्या तैयार किया था, उन्होंने शिप तैयार की थी, आउटफिट द शिप। ट्रेजर, वेल्थ, ख़जाना। नोटोरियस, फेमस विद बैड नेम, बदनाम। इनलिस्ट, मेक इनटू द लिस्ट ऑफ, यानी किसी लिस्ट में अपना नाम लिखवाना, ठीक है। क्रू, टीम, जो ग्रुप मेंबर्स होते हैं, या जो अ टीम ऑफ वर्कर्स। म्यूटिनी, टू राइज अगेंस्ट अथॉरिटी, हुक्मरानों के ख़िलाफ़ खड़ा होना, या हुक्मरानों की बात ना मानना, या जो अथॉरिटीज़ होती हैं हमारे, जो किसी भी चीज़ के जो बड़े होते हैं, ओनर्स होते हैं, उनके ख़िलाफ़ बात करना या उनकी बात ना मानना, एहतजाज कर लेना, ठीक है। मरूंड, someone stuck alone especially on an island, कोई भी इंसान जो कि अकेला फंसा हुआ हो किसी भी जगह पर और उसके पास वापस जाने का रास्ता ना हो, ठीक है। मरून बेसिकली इस्तेमाल होता है उन लोगों के लिए जो कि आइलैंड में फंस जाते हैं। पैसेज, पासिंग टू, यानी गुजर जाना। सीरीज़, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद जब दूसरी चीज़ आए और वो रिपीट होता रहे, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद एक, एक के बाद एक, तो दैट इज़ सीरीज़। सेवरल, मैनी। बीचेस, टू स्टैंड ऑन शोर, यानी किसी चीज़ को साहिल समंदर पर खड़ा कर देना, ठीक है। बीचेस द शिप, मतलब जहाज़ को साहिल समंदर पर रोक देना। प्रिवेंट, स्टॉप, रोकना। एस्केपिंग, रनिंग अवे, भागना। रिकैप्चर्स, कैचेस अगेन, दोबारा से पकड़ लेना। सो grade 4, this is very interesting story, grade 7 sorry, and I hope you enjoyed, right?
what can you do to study it very precisely. बहुत ही मज़े की ये स्टोरी है. It is available in Urdu, it is available in English on YouTube. So if you type Treasure Island for kids, so you will see many short movies for 6 to 7 minutes, and you can see the whole movie, that what happens in the story. Okay, so do watch it, and I hope you enjoyed. So till the next wild lesson, you have to take care of yourself, grade 7, and you have to take care of your family. Please don't go out, and wash your hands, and stay safe. Take care. Allah Hafiz, grade 7.